I welcome you all in the next video tutorial of quality assurance DRO. In this video, we are going to cover the main topic of your number 2, that is about the equipments and raw materials. So in this video, we are going to cover the equipment selection, purchase specification, maintenance, purchase specification, and also the maintenance of store and raw material. So let's start. Before starting, this is for educational purposes only. There is no intention of any commercialization in any of the videos of this channel. As you can see, these are the simple flow chart that you have to remember. So we have two topics. Number one is the equipments, and second is the raw material. So first of all, we will see the equipments, and in equipments, we will cover the definition part. First of all, we will cover the definition of equipment, then equipment selection means the design, size, location, construction. Then we will cover the document required with equipments, very important, and also the purchase specification for equipments, and lastly, the maintenance of equipment. And in the raw material section, we will cover the definition of raw material, again the purchase specification of raw material, just like purchase specification of equipments, and third part is the maintenance of store, just like maintenance of equipment. And in the maintenance store, we will cover the store area, that is the storage area and conditions also. And the last, we will cover the labeling of materials in the storage area. So let's start. The first is the about the equipments, and number one point is the definition of equipment. If we see the definition, equipment may be defined as any piece of plant, machinery, instrument, etc., which is used for carrying out a specific activity or operation. It may be a different machines like HPLC, mixer, grinder, anything. It is equipment. And equipment can be a single piece, or it may consist of set of integrated pieces to perform a common activity. For example, water purification plant. So it consists of different set of integrated pieces to form a particular function. The second part, again, we will cover the equipment selection now. इक्विपमेंट सिलेक्शन, तो वाइल सिलेक्टिंग द इक्विपमेंट फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड. तो जब भी आप इक्विपमेंट सिलेक्ट करेंगे, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. नंबर वन इज द डिजाइन, and second we will cover the size, location and construction. So number one is the design. The design of the equipment should meet the user requirements for which the equipment is to be selected, and for this purpose user requirement specification, that is URS, तो आपको याद रखना है, should be prepared, and it will form the basic of design selection of any equipment. And you know, the URS will vary from equipment to equipment because each equipment works differently, but this should at least answer the following question. So first of all, you have to prepare this URS, that is the user requirement specification. It must follow, complete your different solution to your problem, that which kind of operation we are going to perform with this equipment, किस लिए किस तरह का equipment से हम क्या काम लेंगे, what capacity it should have in terms of holding, in terms of output, सारा specification check किया जाएगा. Which material are we going to use in this equipment, how this equipment will be cleaned, whether we are going to face any problem validating the cleaning operation, do we have trained operators to operate this equipment, क्या वो चलाने के लिए लोग हैं हमारे पास ट्रेंड, वट विल बी द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग टाइम ऑफ द इक्विपमेंट. तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा इक्विपमेंट खरीदते वक्त. अगर साइज की बात करें, द साइज ऑफ इक्विपमेंट डिसाइडेड बेस्ड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स. जितना आपको काम चाहिए, रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप उस मशीन का साइज लेंगे. And the batch size are also directly related to the size of the processing equipment. And in case of the size of the equipment, following things should be considered. तो किन चीजों का ध्यान रखना है साइज के वक्त आपको. नंबर वन, फिजिकल डायमेंशन ऑफ द मशीनरी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी है. साइज ऑफ द रूम, जिस यहाँ पर आपने मशीन रखनी है उस रूम का साइज भी आपको ध्यान में रखना है. होल्डिंग एंड आउटपुट कैपेसिटी ऑफ द इक्विपमेंट ध्यान रखना है. मिनिमम एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल व्हिच वी आर गोइंग टू हैंडल, एंड वेदर द इक्विपमेंट इज एबल टू प्रोसेस दोज मिनिमम मैक्सिमम वॉल्यूम. किस तरह से आपको इस साइज का ध्यान रखना है, कितना सामान हमने उसमें यूज करना है, उस इक्विपमेंट का क्या साइज है सफिशिएंट कि वो उस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स को इजिली यूज कर पाए या इजिली उसमें से काम कर सके. थर्ड इज द लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसीजन ऑफ लोकेटिंग द इक्विपमेंट इन द प्लांट डिपेंड अपॉन द लॉजिकल प्रोसेस मूवमेंट. तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई इक्विपमेंट लिया और एक ऐसी जगह रख दिया जहां पर उसको निकालना ही मुश्किल हो गया. मान लो रिपेयर करनी है लेकिन आप उसको निकाल नहीं पाए, उसकी लोकेशन गलत थी, या अपने ऐसी जगह रख दिए जहां पे कंटेमिनेशन हो रही है. तो लोकेशन बहुत जरूरी है. कहां पर वो इक्विपमेंट रखा जाना है, उसके संदर्भ में आपको पूरा प्लानिंग के साथ सोचना पड़ेगा, तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगा प्रॉपर. तो फॉलोइंग फैक्टर्स आर which influence the location of the equipment. तो इन फैक्टर्स का ध्यान रखना है. यूटिलिटी सर्विसेज रिक्वायर्ड, पोटेंशियल डेंजर ऑफ कंटेमिनेशन मिक्सअप, बिल्कुल
material handling and movement for processing and cleaning, then men movement for repair and maintenance, चीजों का ध्यान रखा जाएगा। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो फॉलोइंग फोर फैक्टर मे बी कंसिडर्ड, दैट इज ईज ऑफ क्लीन द इक्विपमेंट and the surrounding area, ease of operation of equipment, ease of maintenance of equipment, and also the material of construction, that is MOC। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले हमने कवर कर लिया। सबसे फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन ऑफ इक्विपमेंट, देन इक्विपमेंट सिलेक्शन में डिजाइन कैसा हो उसका, साइज, लोकेशन और कंस्ट्रक्शन। नाउ वी विल सी द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड विद द इक्विपमेंट। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इक्विपमेंट के साथ। तो मशीनरी का सबसे पहले कोई भी इक्विपमेंट होता है उसके साथ उसका एसओपी, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रखा होगा हमेशा। तो मशीन इक्विपमेंट लेआउट ड्राइंग होगी, उसकी उस इक्विपमेंट का ड्राइंग होगा, शोइंग द पोजीशन ऑफ द इक्विपमेंट इन द रूम। इक्विपमेंट वैलिडेशन रिपोर्ट, उसका पूरा का पूरा क्या वो वैलिडेशन हो रहा है, उसकी अगर लॉग बुक रिक्वायर्ड है तो लॉग बुक लगाई जाएगी। एसओपीज तो हमेशा होंगे। नाउ वी विल सी द परचेज स्पेसिफिकेशन। तो परचेज करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो व्हाइल परचेजिंग द इक्विपमेंट फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन शुड बी कंसीडर्ड। नंबर वन, ऑपरेटिंग क्राइटेरिया आर एडुकेट फॉर द प्रोसेस लाइक साइज, स्पीड, इफेक्टिवनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स एंड सर्विसिंग। इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा परचेजिंग के दौरान। ईज ऑफ मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल इश्यूज। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है बहुत ज्यादा उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो ध्यान रखा जाएगा कि वो कम से कम जो साउंड है कम से कम उस इक्विपमेंट से आए, या कोई डस्ट कंटेमिनेशन हो रही है, तो सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा परचेज करते वक्त। कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट शुड बी नॉन रिएक्टिव विद एपीआई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, बिकॉज हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते समय बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं और केमिकल्स यूज करते हैं। ऐसा ना हो कि उस केमिकल्स के साथ ही उस इक्विपमेंट का जो मटेरियल है कोई रिएक्शन हो जाए, तो उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल को देखा जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल, बिल्कुल कॉस्ट पे ध्यान रखा जाएगा, ज्यादा कॉस्टली ना हो। पूरा हमें एक परचेज प्रोसीजर को फॉलो अप करके ही उसको लेना है, कंपैरिजन करके ही डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स के रेट को कंपेयर करके, उसकी स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करके हमें परचेज को आगे इनिशिएट करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ एसओपी, डिजाइन, मेंटेनेंस मैन्युअल, वैलिडेशन, क्वांटिफिकेशन, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, बहुत जरूरी है। इक्विपमेंट शैल बी मेंटेन एट अप्रोप्रिएट इंटरवल टू प्रिवेंट द माल फंक्शन। बिल्कुल समय समय पर उसकी मुरम्मत का कार्य, उसकी उसकी सर्विसिंग का कार्य किया जाएगा उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की। रिटन प्रोसीजर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एंड फॉलोड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। बिल्कुल मेंटेनेंस शेड्यूल, जब उसकी रिक्वायरमेंट है कितने समय पे उसकी शेड्यूल होगा, उसका मेंटेनेंस होगी, सर्विस होगी, वो सब टाइम पे किया जाएगा। इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट बिफोर यूज पूरी होगी। प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट पूरा ध्यान रखा जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड प्रोसीजर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट मेंटेनेंस शैल बी केप्ट फॉर फर्दर यूज। तो दीज आर दी वेरी एसेंशियल पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर दिया, दैट इज अबाउट द इक्विपमेंट। वी हैव कंप्लीटेड डेफिनेशन, डिजाइन, साइज, लोकेशन, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एसओपीज वगैरह, purchase specification, and also the maintenance of equipment. Now we will cover the raw material, and number one is the definition of raw material. तो अब देखते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल की डेफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है रॉ मटेरियल की। परचेज स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, रॉ मटेरियल खरीदते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल आइडेंटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, दीज आर द बेसिक थिंग्स। नेक्स्ट, वेंडर सिलेक्शन, जिससे हमने सप्लाई लेनी है, सामान लेना है, उसकी सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है कि वो मैन्युफैक्चर ठीक है कि नहीं। एंड ऑल द रॉ मटेरियल शुड चेक for the following things: name of the manufacturer, name of the product material, batch number, date of manufacturing, date of expiry, quantity received and number of container or packages, condition of container materials, even the storage conditions, सारा ध्यान रखा जाएगा। लेबल ऑन द रॉ मटेरियल शुड बी यूनिफॉर्म, उस पे कोड लिखा हो, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द बैच नंबर, ये सारी चीजें, उसकी स्टोरेज कंडीशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट, एक्सपायरी डेट, हैंडलिंग हैजर्ड, प्रिकॉशन, सेफ्टी, इंस्ट्रक्शन फॉर सैंपलिंग, ये सारा का सारा में चीजों का ध्यान रखना है परचेज करते वक्त किसी भी रॉ मटेरियल को। नेक्स्ट, मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ स्टोर फॉर रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल ले लिया है तो आपको स्टोर का मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि रॉ मटेरियल आपका स्टोर में काफी समय तक रखा जाए। तो स्टोरेज एरिया जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरिंग एनी रॉ मटेरियल। तो स्टोरेज एरिया में देयर शुड बी सफिशिएंट एरिया इन द स्टोर फॉर द स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। देयर शुड बी the area for storage of raw material should be clean, dry and maintained within the acceptable limits of the environmental condition। बिल्कुल उस एरिया की क्लीनिंगनेस बहुत जरूरी है ताकि हमारा मटेरियल जो है वो अच्छे से रह सके, वहां पे खराब ना हो। नेक्स्ट, देयर शुड बी वेल इक्विप्ड एंड अप्रोप्रिएटली डिजाइन्ड रिसेप्शन एरिया फॉर द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल। बिल्कुल एक स्टोरेज एरिया में रिसेप्शन एरिया होना अति आवश्यक है ताकि हमारा मटेरियल खराब ना हो। देयर शुड बी अ सेपरेट एरिया फॉर सैंपलिंग, सैंपलिंग के लिए अलग से स्पेस रिक्वायर्ड होता है किसी भी स्टोर हाउस में।
and there should be separate area for storage of rejected, recalled or returned material के अलग से space होगा. There should be a separate safe and secure area for storage of narcotics, psychotropic, hormones, steroids. जो भी इस तरह के dangerous substances है, narcotic drugs है, उनके लिए अलग से प्रावधान होता है storage area में रखने का. There should be a separate area for in-process material, bulk products and finished product. बिल्कुल. There should be a separate area for रिटेन्ड सैंपल, जो सैंपल रखने हैं उसके लिए अलग से प्रावधान होगा. तो स्टोरेज कंडीशन भी अलग अलग हो सकती है, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो हीट सेंसिटिव है या वो लाइट सेंसिटिव है, थर्मोलेबाइल है या रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की कंडीशन हर रॉ मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकती है. चलिए देखते हैं. द रॉ मटेरियल इन द स्टोर शुड बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज कंडीशन. उसकी स्टोरेज कंडीशन के हिसाब से उसको रखा जाएगा. फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे फॉर जनरल प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर शुड बी 30 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी 60%. And the product requiring storage in air conditioning, उसके लिए temperature condition है 25 plus minus 2 degree Celsius and relative humidity should be 45 to 55%. And product requiring low temperature के लिए temperature should be 2 to 8 degree Celsius. तो ये depend upon the टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल. अगर लेबलिंग की बात करें तो लेबल होना चाहिए हमारा किसी भी रॉ मटेरियल पे, उसका डेजिग्नेटेड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उसका कोड होगा, बैच नंबर, स्टोरेज कंडीशन, हैंडलिंग प्रोसीजर दिया होगा, उससे एसोसिएटेड रिस्क और हाजर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, प्रिकॉशन क्या क्या लेने हैं, सेफ्टी मेजर एंड डेट of expiry. बिल्कुल. I think this is clear to you. So we have completed this point also in number 2 का. Equipments हमने complete कर लिया. Definition of equipment, equipment selection हमने देखे, design, size, location and construction. Then we covered also the document required with the equipment. Purchase specification हमने complete किया. Maintenance of equipment we have completed. Then we have completed the raw material also. Definition of the raw material, purchase specification for raw material. Then we have covered the maintenance of store, in which we have covered the storage area and storage condition, and also the labeling of materials in the storage area. So I hope this is clear. In the last, I acknowledge all the sources I have proposed to use this video. Thank you all for a valuable time.